کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا، پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا۔ ہلو جی ہلو، جی ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔ جی کون بول رہے ہیں بھائی جان؟ ہم تو ابھی فون لگائے تھے اپنے دوست کے پاس سداد۔ اچھا اچھا، اور سب خیریت سے ہیں؟ جی جی خیریت۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو، کیا نام ہے آپ کا؟ ارباز خان۔ ارباز خان۔ جی اچھا اچھا، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تو کوئی خاص مسلک نہیں ہے، کیوں؟ بس ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ کا کوئی مسلک نہیں ہے؟ جی نہیں۔ کیوں؟ کیا مطلب جنت میں جانے کے لیے مسلک ہونا ضروری ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہے؟ جی جی بالکل۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ پر اور رسول پہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو قادیانی بھی تو تب مسلمان ہو گئے نا؟ جی تو جو اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو جو توڑے گا تو پھر اس کو تو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ وہی بات جو میں بول رہا قادیانی ہوں نا، توڑتا کیونکہ ہے، قادیانی، سن لیجیے ایک منٹ بھیا، بھائی جان یہاں میرے پہ کہنے کا مطلب ہے کہ نام رکھ لینے سے بولیے مطلب بولیے، مسلک کا نام رکھ لینے سے تبھی سنیے ہم جنت میں جائیں گے۔ سن لیجیے، آپ کا جواب میں دے رہا ہوں، جی ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اطمینان و سکون سے، اور کوئی یہ نہیں کہ آپ کو کوئی میں اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہوں، بس اصلاح کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ اصلاح ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی جی، اب میں بتا رہا ہوں، آپ نے بولا مسلک ہونا ضروری ہے، تو دیکھیے قادیانی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے، ٹھیک ہے، ابھی تک تقریباً بہت سارے فرقے بن چکے، قادیانی، نصرانی، ٹھیک ہے، اور تقریباً شیعہ، ٹھیک ہے، اور فرقہ مجشمیہ اور بہت سارے دیگر فرقے بنے، سب کے الگ الگ عقائد تھے، ٹھیک ہے۔ جی اب اگر آپ کسی مسلک کو نہیں مانتے ہیں، یعنی آپ شیعہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، قادیانی کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ مسلک اس لیے نام رکھا گیا، کہ اپنا نام اس لیے الگ بنایا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، ٹھیک ہے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ صحیح حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ملتوں واحدوں، سوائے ایک فرقہ کے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سا فرقہ ہے؟ ماں، تو صحابہ اکرام نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ماں انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک فرقہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 72 فرقوں کو جہنمی بتایا اور ایک فرقے کو جنتی بتایا نا، اور ایک فرقہ بتایا جو جنتی ہے، تو آپ کو یہ فکس کرنا پڑے گا نا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہم فکس نہیں کریں گے۔ اب آپ بولیے گا کہ میں کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو آپ نہیں مانتے کہ یہ بریلی جائے گا جنت میں، یا اہل حدیث جائے گا جنت میں، یا قادیانی جائے گا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقہ کا کیریکٹرسٹک بتائیں کہ جو سنت اور صحابہ کے عمل کو جو فالو کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ ارے بھائی، تو دعویٰ تو سب کرتے ہیں نا کہ میں سنت اور صحابہ کے طریقے کو مانتا ہوں۔ اگر ہم اس بات سے انکار کریں گے تب ہم کو اصلاح کرنا پڑے گا۔ سنیے نا بھائی جان، ہلو، سنیے بھائی جان، ہلو ہلو، سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتا دیا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور 72 فرقے جہنمی ہے نا، تو آپ کو تو بولنا پڑے گا نا دوسرے فرقوں والوں کو کہ وہ جہنمی ہے۔
नहीं तो हुजूर सल्लम की हदीस मुबारक, अरे यार आप नहीं डिसाइड कीजिएगा, हुजूर सल्लम ने डिसाइड कर दिया। अल्लाह बेशक गैब जानने वाला है, वो सारे लोगों का जानता है किसका अकीदा कैसा है। चलिए अब तो अल्लाह ताला अब आप चलिए ठीक है, आप इस बात को आप इस बात को डिसाइड नहीं कीजिए क्योंकि आप हमको मालूम है नहीं मानिए। खैर छोड़िए, हम दूसरे बात पे आते हैं, ठीक है। तो यानी आप किसी फिरके को नहीं मानते। हेलो हेलो, सुनिए ना, आप किसी फिरके को नहीं मानते हैं यानी हुजूर सल्लम की इस हदीस मुबारक को आपने तर्क कर दिया। खैर छोड़िए, अब दूसरी बात यह है कि यही आप इंजाम डाल रहे हैं हमको। खैर छोड़िए, तो आप ये बताइए कि बुनियादी इख्तलाफ किस मामले में है? फिरकों में मत बटिए आप, फिरका उस वक्त कुरान बोल रहा है फिरकों में मत बटिए, तो किस एतबार से बोल रहा है आपको मालूम भी है? किस एतबार से थोड़ा बताइए। कुरान बोल रहा है मुसलमानों को, ठीक है। और जो फिरके अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानते हैं आप। जब हुजूर ने खुद फरमा दिया कि 73 फिरके होंगे तो होंगे। हाँ जी, तो बात खत्म है यहाँ पे। तो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं सर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोग अपना अपना फिरका बनाना शुरू कर दें। फिरका बनाना, देखिए फिरका बनाया किसने, हम आपको बता दें। हम आपको बताते हैं फिरका बनाया किसने, ठीक है। पहला फिरका बना शिया, ठीक है। शियाओं ने अपना अकीदा अलग कर लिया, उन्होंने बोला कुरान मुकम्मल नहीं है और जो है सहाबा किराम पे भोंकने लगे, तो वो शिया बने। फिर राफजी बने, ठीक है। उन्होंने अलग अपना अकीदा बनाया, ठीक है। उसके बाद अभी तकरीबन 150 साल पहले एक देवबंदी फिरका करके आया, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियां बकी, अल्लाह के शान में गुस्ताखियां बकी, तो उसने अपना अलग फिरका बनाया। और अभी 1924 में एक अहले हदीस फिरका बना, उसने अल्लाह के शान में गुस्ताखी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उसने अपना फिरका बना लिया, अपना नाम रखा अहले हदीस, ठीक है। जो 1400 साल से चला आ रहा है ना, वो एक कायम मुकम्मल है। उसने कोई भी फिरका नहीं बनाया, वो अपने अकीदे पे जमा हुआ है, ठीक है। तो जिसने फिरका बनाया आपके अकॉर्डिंग वो अहले हदीस है, देवबंदी हैं, राफजी हैं, शिया हैं, और ये सब गुस्ताख जहन्नमी है। इसलिए ठीक है, लेकिन मेरा ये है कि आप इस्लाम पे क्या ये जरूरी नहीं क्या जी अल्लाह ताला जैसा चाहता है हेलो, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, थोड़ा कस के बोलिए। बोल रहे हैं अल्लाह ताला खुद कैटेगराइज कर देंगे। अल्लाह कर देंगे, कैसा अल्लाह कर देंगे। अरे अच्छा ये बताइए, आपका वसीले के ताल्लुक से क्या अकीदा है? वसीले का नहीं, हम 2-3 चंद सवाल पूछे थे, उस पे कोई जवाब नहीं आया। सुनिए तो पहले वो देखिए, आपका सवाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपका बुनियादी अकीदा जो इस्लाम का और ईमान का ऐन जान है, ठीक है, ईमान की जान है, उस अकीदे के बारे में मैं क्लियरिफिकेशन करूंगा कि आपका क्या अकीदा है। वसीला लेना जायज है या गलत है, ये बताइए। वसीला और 2-3 चीज है जिसपे इंशाल्लाह अभी हम सर्च करेंगे, उस पर अभी हम नहीं आए हैं, जैसे कि तो यानी आप वसीला नहीं लेते हैं, यानी वसीला लेंगे तो बोलिए ना भाईजान। हेलो 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 बोल दीजिए वसीला मतलब अभी फिलहाल में नहीं लेते हैं, अभी तहकीक कर रहे हैं, यही ना? क्या यानी वसीला आप अभी नहीं लेते हैं, अभी उस पर तहकीक कर रहे हैं, यही ना? तहकीक करेंगे इंशाल्लाह। क्या सही बात है, अल्लाह ताला। अरे यार तो आप लोग छिपाते क्यों है भाईजान? क्लियर बोलिए, मैं अहले हदीस से बोल रहा हूँ, वहाबी बोल रहा हूँ, या अहले हदीस वसीला अपने आप को बहुत सारा गलती अहले हदीस में देख रहे हैं, जो दूसरे उलमा को बुरा भला कह रहे हैं, इसको हम सही नहीं मानते हैं, तो डायरेक्ट हम अहले हदीस क्यों कह दें अपने आप को? तो यार अहले हदीसी जो है ना, वो जो वसीला नहीं मानते, उसको हम अहले हदीस की भी हम बात नहीं मानेंगे। अच्छा अहले हदीस सही है या गलत है? अब हम कैसे बता दें, जहाँ अगर उसकी बात कुरान और हदीस से टकराएगा आपको गलत है। आप कैसे साबित कीजिएगा वो कुरान और हदीस से टकरा रहा है? आपको कैसे नॉलेज होगा? कर रहे हैं हम, इससे दलील लगेंगे। अच्छा, तो यानी वसीले पे आप तहकीक कर रहे हैं, यही बात है ना? जी हम तहकीक कर रहे हैं। पहले हम बरेलवी थे, क्योंकि मेरे घर वाले बरेलवी थे। पहले आप बरेलवी थे, आपके घर वाले भी बरेलवी थे? जी। आपके दादा भी बरेलवी थे? जी बिल्कुल। उनके दादा के दादा भी सब बरेलवी थे, वो तो हमको मालूम है।
आपने आप बदल गए, आप सुनिए ना, हेलो हेलो हेलो, अरे सुनिए तो भाईजान, आप बदल गए, किस वजह से बदले, क्या रीजन था बदलने का? बदलने का क्योंकि जो अमल यहाँ हो रहा था उसका कोई हमको मुतमईन करने वाला कोई दलील नहीं मिला। मुतमईन करने वाला कोई दलील नहीं मिला है? यानी आप, जी यानी कौन सा अमल जो आपको मुतमईन नहीं किया, बताइए। सारा अमल है, एक जैसे अमल है। जैसे एक आपने, आपका क्वेश्चन आया था कि दरूद, ये जो दरूद पढ़ते हैं ये बिदअत है, सही ना? जरूर ये तो आप तहमत आप लगा रहे हैं। मतलब कौन सा दरूद? दरूद और सलाम पढ़ने के तरीके को हम कहें, दरूद और सलाम पढ़ने के हम फेवर में हैं, लेकिन तरीका के फेवर में नहीं है। अच्छा, तो यानी वो बिदअत है, हाँ? जो फेवर हो, मतलब अच्छा, तो बिदअत कहते किसे हैं, ये बताइए आप। बिदअत जो दीन में नई चीज हो, जो दिन में नई चीज हो। जी। ये जो तारीफ, आपके ये समय तारीफ, के दौर में ये तारीफ किसने किया? सलम किए। हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है 4266। अच्छा, क्या है? जिसने मेरी दीन में नई चीज लाई, बजाते ही हदीस के अल्फाज है, हाँ, वो अमल रद्द किया जाएगा। हदीस नंबर 4266 सही हाँ। मुस्लिम। अच्छा, यह जो हदीस नंबर 4266 बोल रहे हैं, ये क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था? कौन सा? तो आपने तो बिदअत कर दिया। और क्या हम आप बिदअत कर रहे हैं? अरबी पढ़ के सुनाइए ना। वसल्लम के जमाने में अरबी था, अरबी था ना, अरबी, जी। अरबी जबान थे। आप तो तर्जुमा सुना रहे हैं, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तर्जुमा था? आप तो यहाँ उर्दू तर्जुमा सुना रहे हैं, यानी आपने बिदअत कर दिया आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग कैसे बिदअत हो गया? अरे भाई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो, अरे हुजूर सल्लम तो अरबी बोलते थे ना भैया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीस मुबारक, हदीस की किताब थी बुखारी। जी बिल्कुल, उनके जमाने में बुखारी नहीं, तो लेकिन जमा किया गया है। तो सुने, तो बिदअत हो गया ना। अरे बिदअत हो गया ना, दिन में नया काम हो गया। अरे आप ही तो हदीस बोल रहे हैं ना भाई। दिन में बिल्कुल नया काम नहीं है। दिन में नया काम नहीं है। अरे क्या पढ़ते हैं भाई आप लोग? जब सारे लोग का इस पे क्या सारे लोग का इजमा है। तो क्या सहाबा इकराम के दिमाग में नहीं आया कि हम हदीस मुबारक एक बुखारी बना दे, मुस्लिम बना दे, तिरमिजी बना दे, सिया सित्ता की किताबें बनाए? कि सहाबा के जब दिमाग में नहीं आया? तो यानी आपके अकॉर्डिंग इमाम बुखारी बिदअती साबित हो गए। ये क्या तारीफ करते हैं आप लोग यार? बिल्कुल नहीं, यही बिदअत की तारीफ है। बिदअती साबित नहीं है। पढ़िए, तहकीक कीजिए भैया, तहकीक कीजिए। क्या आप तर्जुमा सुना रहे हैं? वसल्लम के जमाने में क्या तर्जुमा था? कर रहे हैं लो आप लोग उम्मत को। अरे भाई, तहकीक कीजिए, तहकीक। जब बोल रहे हैं बिदअत की तारीफ, ये जिसने मेरे दिन में नया काम किया उसने बिदअत किया। जिसने मेरे दिन में नया काम किया उसने बिदअत किया। अभी आपको ये मालूम नहीं है कि बिदअत की कितने किस्में हैं? मालूम है कि नहीं आपको? बिदअत के दो कैटेगरीज है, दो, बिदअत शैया, बिदअत हसना। जी जी, इतना जानते हैं। बिदअत हसना, बिदअत एक और है जिसको आप लोग बुरा बिदअत करते हैं। हाँ, अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत। ठीक है, अब सुन लीजिए पहले इधर, पहले मेरे बात सुन लीजिए। आप अभी बच्चे हैं मेरे सामने, पहले सुन लीजिए। हेलो भैया, ठीक है, आप एक दलील दे दीजिएगा, इंशाल्लाह हम इस्लाह करेंगे अपने आप को। अरे आप कभी नहीं मानिएगा। आपसे वादा करते हैं। आपको जिस चीज का दलील चाहिए हम देंगे दलील, ठीक है? पहले 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 यही वजह, हम यही मेन वजह है कि नफरत पैदा होता है। अच्छा चलिए ठीक है, हम सीधा मुद्दा पे आते हैं हम आपसे। नई चीज चलिए तो हम मुद्दा पे आते हैं, सुनिए ना। हेलो, हम डायरेक्ट, हाँ तो चलिए ठीक है, हम क्या घुमाए फिराएंगे नहीं आपको, हम मुद्दा पे आते हैं। पहले बात करने का वसूल सीखिए, कैसे बात किया जाता है। पहले एक आदमी बात मुकम्मल कर लेता है ना, दूसरे को बोलना चाहिए। सिखा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। उर्स मना देते हैं। अरे हम अहले हदीस, सुनिए ना। हेलो, जी जी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यानी प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलते हैं ना आप, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, ये कुरान और हदीस से साबित कीजिए। क्या? कुरान और हदीस से साबित कीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो हुजूर के नाम के आगे लगाते हैं। सुनाई दे रहा है?
देखिए, जो अमल हम सवाब के नियत से करेंगे वो पूरा बिदअत है। अरे भाई तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आप बोलते हैं, उस सल्लम के नाम के आगे बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए पहले। हेलो, जी अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए ना। बोल जी जी तो साबित कीजिए कुरान और हदीस से, पूरा हदीस में है। साबित कीजिए ना, साबित कीजिए। हाँ, हदीस कितना हदीस बोलिए ना, इससे कितना हदीस है? इस पे एक हदीस साबित कीजिए कि किसी सहाबा इकराम ने या इमाम बुखारी ने, सहाबा इकराम हुजूर सल्लम और यानी कुरान और हदीस से आप साबित कीजिए कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के नाम के आगे लगाना, ये कुरान और हदीस से साबित कीजिए आप, नहीं तो बिदअती होंगे आप। ठीक है बिल्कुल। कब तक साबित कर रहे हैं आप? हदीस नंबर अभी साबित करेंगे। तो साबित कीजिए, अभी वेट करते हैं हम। और सुनिए, हेलो 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 हेलो, जी जी, आप एक भी दलील नहीं दिए। अरे आप दलील मांगे कहाँ की हम देंगे, अभी तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे पास हर बात की दलील है, समझे। हम आपको दलील इतना भेजेंगे कि आप क्या बात है, आप पूरे फूल जाइएगा। खैर छोड़िए, आप इसका जवाब दे दीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के नाम के आगे लगाना कुरान और अहादीस मुबारका से साबित कीजिए, ठीक है। और ये एक मेरा क्वेश्चन ये हुआ, और क्वेश्चन सुन लीजिए। सऊदी अरब में तहज्जुद की नमाज के लिए अजान मुबारक होता है। हेलो, हाँ। सऊदिया में यानी तहज्जुद की नमाज के लिए अजान पढ़ा जाता है, ठीक है। कुरान और हदीस से साबित कीजिए। क्वेश्चन लिखते रहिए, हम क्वेश्चन बोलते हैं आपको, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन सुनिए। आप दलील दीजिए ना। किस चीज का दलील? आप ना एक भी सलाम पढ़ने का दलील दिए हैं। क्या सलाम का दलील चाहिए, बोलिए ना, क्या दलील चाहिए सलाम का? आप सलाम पढ़े हैं कि नहीं, आप दलील दीजिए, एक भी हदीस का नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पढ़े हैं कि नहीं? सलाम जिस तरह आप सुबह सुबह पढ़ते हैं उसका तरीका बताइए, एक भी हदीस का नंबर बताइए। मतलब सुबह जो सलाम पढ़ते हैं, अब एक भी हदीस का नंबर बताएं। क्या मतलब आप लोग तहकीक करते हैं। सुनिए, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ठीक है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं अपने नबी पर। ऐ ईमान वालों, सुनिए ना, ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब दरूद व सलाम भेजो अपने नबी पर, ठीक है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि तुम खूब दरूद व सलाम भेजो, तो यार हम सो के पढ़े, लेट के पढ़े, जैसे भी पढ़े, हम जितना सलाम पढ़े, आपको प्रॉब्लम क्या है? ये सलाम से इतना चिढ़ है, आप लोगों को सलाम से इतना चिढ़ है, और विदाउट सलाम का आपका नमाज नहीं होता है, और सलाम से इतना चिढ़ है आपको। यही नबी के उम्मती हैं आप, नबी के उम्मती, यही नबी के उम्मती हैं आप जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह एक बार। अरे यार, तो आप ये साबित कीजिए ना कि उस तरह पढ़ना बिदअत है, ये साबित कीजिए तो आप। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में नहीं, सारा तो वही तो बोल रहे हैं ना यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो कुरान, सुने तो यार, नबी के जमाने में तो कुरान में जेर जबर नहीं था। आप तो कुरान जेर जबर से पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ना आपका बिदअत हो गया। उसको हम सवाब समझ के नहीं ना, यानी कुरान को सवाब समझ के नहीं पढ़ते हैं, जाहिल जैसा बात करते हैं आप, कुरान को भी सवाब समझ के नहीं पढ़ते हैं। बात कर रहे हैं आप, एक भी हदीस नहीं बताएं। अरे आप ऐसा बात, नबी के जमाने में जानते हैं कुरान में जेर जबर नहीं था, नबी के जमाने में हदीस की किताब नहीं थी, नबी के जमाने में कुरान का नुस्खा एक जगह तैयार नहीं हुआ था, नबी के जमाने में पक्की मस्जिदें नहीं बनती थी, नबी के जमाने में गुम्बद नहीं था, जो मस्जिद पे तुम लोग गुम्बद बनाते हो। नबी के जमाने में तो और अहले हदीस फिरका, नबी के जमाने में अहले हदीस फिरका नहीं था, नबी के जमाने में कोई ये नहीं बोलता था कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानेंगे। ये सब बिदअत आपने इजाद कर दिया ना, आपने बिदअत को कब मिटाइएगा? आप सुनिए, कोई मस्जिद पक्का बना के ये नहीं समझ रहा है कि इसमें हमारा सवाब ज्यादा हो। अरे तो नबी के जमाने में नहीं था ना, तो बिदअत हो गया ना। आपको डिफिनेशन नहीं मालूम है? आपको किसने बता दिया डिफिनेशन? आप ही का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं ना। अब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको कुरान कैसे आता है पढ़ने? बिगैर जेर जबर के कुरान पढ़ लीजिएगा आप। आपको बिदअत का डिफिनेशन नहीं मालूम? अरे आप हमको अच्छी तरीके से मालूम है। आपने जो बिदअत की तारीफ की, बोल दिए, पहले बिदअत बोलने, बिदअत बोलिए, बिदअत, ठीक है। और जो आप फतवा लगा रहे हैं ना बिदअत की, आपके घर से मैं बिदअत की तारीफ साबित करूंगा। आपके जो इब्ने तैमिया अब्बा हैं, आपके जो जलंधरी साहब हैं, ठीक है, जो इब्ने कय्यम जौजी हैं,
आपके जितने भी उलमा है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जिसने अहले हदीस फिरका बनाया, मैं उन सभी से बिदात की तारीफ साबित करूंगा, ठीक है। और जो आप एतराज कर रहे हैं ना, जरा उलमा और इजमा पे जरा गौर कीजिए कि क्या उलमा का इजमा क्या है, इस पे उलमा का इत्तेफाक है कि नहीं इस पे, ठीक है। आप जो बिदात बोल रहे हैं ना, अपने बाप दादाओं को आप बिदाती साबित कर रहे हैं। जरा गौर फिक्र कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं, जरा गौर फिक्र कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। आप कुरान पढ़ना छोड़ दीजिए, सुनिए ना, हेलो, आप कुरान पढ़ना छोड़ दीजिए और हदीस मुबारका का तर्जुमा पढ़ना छोड़ दीजिए, बुखारी पढ़ना छोड़ दीजिए, मुस्लिम पढ़ना छोड़ दीजिए। या बुखारी पढ़ने से सवाब होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। हम बुखारी पढ़ने से सवाब होता है कि नहीं होता है? हदीस का इल्म। अरे हदीस पढ़ने से सवाब होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल। तो बिदअत हो गया ना। कैसे हो गया? अरे जाहिल मुतलक साहब कैसा बात करते हैं आप? अभी आपने तारीफ किया कि जो दीन में नया काम समझ के उसको सवाब समझ के काम करे, तो सही बुखारी का नबी के जमाने में था। हम तो इल्म हासिल करते हैं। अपने बिद्दती अकीदे को कब छुपाए, कब बजाइएगा? इल्म हासिल कीजिए, समझिए। इसीलिए बोल रहा हूँ ना भाईजान, मैं आपको इस्लाह कर रहा हूँ। तो नहीं ला सकेंगे क़यामत तक। पहले चैलेंज है मेरा, क़यामत तक एक भी हदीस नहीं ला पाएंगे। किस चीज का? पूरे जितना आपका अकीदा है, ये उर्स माना अरे करना। अपने बातिल अकीदे को पहले दूर करो यार। तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म है, तुम्हारा अकीदा है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, तुम्हारा अकीदा है कि हुजूर का वसीला जायज नहीं है, तुम्हारा अकीदा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माजल्ला, तुम्हारा अकीदा है कि नबी के सुनो यार, तुम्हारा अकीदा है कि नबी के वालिदैन ईमान वाले नहीं है, तुम्हारा अकीदा है नबी के वालिदैन ईमान वाले नहीं है, तुम्हारा अकीदा है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। तो गुस्ताख तुम लोग हमें इल्म सिखाओगे। खुद के बिद्दती अकीदे से, खुद के बिद्दती डिफिनेशन से तुम बिद्दती साबित हो गए। पहले अपने बिद्दती अकीदे को सुधारो जाहिल, अपने बिद्दती अकीदे को सुधारो और कुरान पढ़ना छोड़ दो, हदीस मुबारका पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। और अब्बा अम्मा तुम्हारे बरेलवी थे, तो यानी तुम तो उनको मुशरिक बोलते हो ना, बरेलवी को। तुम्हारे अम्मा अब्बा का तो शादी हुआ नहीं क्योंकि मुशरिक थे। अब मुशरिक से तुम पैदा हो गए, तुम तो हराम के औलाद हो गए। समझ रहे हो? अपने आप को क्या साबित कर रहे हो? अपने अम्मा अब्बा को बिद्दती साबित कर रहे हो तुम। बोलने का तमीज नहीं है। अरे तमीज नहीं है तो अब तुमको हक्कानियत तुमको दिखा रहे हैं, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा अब्बा बरेलवी थे, दादा बरेलवी थे, अम्मा अब्बा दादा मुशरिक थे, यानी अब मुशरिक थे तो शादी हुआ नहीं। अब शादी हुआ तो जब शादी जायज ही नहीं हुआ, हराम हुआ, तो तुम हराम के पैदा हो गए ना। रिकॉर्डिंग जाहिल बिद्दती रख